Today we will discuss about the topic of structuralism. So before studying the topic, we will discuss about the structure. What is the structure? Structure मतलब क्या? Structure means in order or arrangement. Everything has a structure. Structure का मतलब होता है order में होना और arrangement में होना. ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है एवरीथिंग हैज़ अ स्ट्रक्चर. हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बिल्डिंग. This building is made up of cement, bricks and pillars. So bricks, सीमेंट और पिलर्स जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होंगे तभी एक बिल्डिंग बन सकती है. इसी तरीके से ये स्ट्रक्चरलिस्ट में भी इसी चीज़ की बात करता है कि लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर होता है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ़ वी लुक सोलर सिस्टम, देयर आर 9 planets. Planets have continent. Then continents have country, countries have states, states have city. Everything is in structure. It means our solar system has 9 planets and Earth have 7 continents. Continents have country, country have states, states have city. Everything is in a proper structure. Structuralism is not a new concept. It was an ancient concept as many writers or authors discuss about this topic. For example, there is also a structuralism in literature, like Aristotle's poetry. He discussed about structuralism in his work Poetics, described the structure of a tragedy. Aristotle in his work Poetics described the structure of a tragedy. कि ट्रेजेडी के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रेजेडी किस तरीके से बनती है. तो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ये बताया है. सो इट मीन्स दैट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ नॉट अ न्यू थिंग. इट वाज एन एंशियंट थिंग. इट वाज अ ओल्ड थिंग, ओल्ड थ्योरी. Before discussing the meaning of the structuralism, we have to divide the history of a literary text in two parts. In first, pre-1920 belief and the post-1920 belief. यानी कि कोई भी लिटरेरी वर्क है तो उस लिटरेरी वर्क को लेके दो बिलीफ थे. एक तो था प्री 1920 बिलीफ और एक था पोस्ट 1920 बिलीफ. इन प्री 1920 बिलीफ एनी लिटरेरी वर्क सीन एज अ वर्क. कोई भी लिटरेरी वर्क को हम वर्क के रूप में देखते थे. कोई भी लिटरेरी वर्क मतलब क्या? पीपल बिफोर 1920 यूजुअली लुक्ड द लिटरेरी वर्क लाइक अ पोएम, ड्रामा, नॉवल एज अ वर्क. इट मीन्स in pre-1920 people usually see the literary work like a poem, like a drama and a novel. They look any literary work as a work. वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क मीन्स लाइक अ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, लाइक अ बुक एंड इट हैज़ रिटन बाय एन ऑथर और समबडी. वो एक किसी भी एक लिटरेरी वर्क को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में देखते थे विच वॉज रिटन बाय एन ऑथर. जस्ट इट. नाउ इट इज़ क्लोज एंडेड थिंग. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. वर्क इज़ अ क्लोज एंडेड थिंग और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे. यू कैन नॉट अप्लाइड योर ओवन इंटरप्रिटेशन टू अंडरस्टैंड इट. You just read the work in social and psychological context and devise the meaning. You cannot change it. You just read the work written by a writer and you understand what is written in that work. You cannot apply your own interpretation. It is about the belief in pre-1920. But in post-1920, literary work was known as a text. Literary work को हम text बोलते थे. In post-1920, the literary work not considered a work, it was a text. It was considered as a text. What is text? Text is a linguistic construct just like a work, a physical object. Text एक linguistic construct है. जैसे कि work को हम physical objects consider करते थे, वैसे ही text को एक linguistic construct consider किया जाता है. It was open-ended. It's open to interpretation. What is the meaning of open-ended? Means you can interpret it. आप इसके बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हो टेक्स्ट के. इफ़ यू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज रिटन इन अ पेज, यू कैन हैव वेरियस इंटरप्रिटेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज रिटन इन अ टेक्स्ट, देन यू कैन डिवाइज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दैट टेक्स्ट. ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी एक टेक्स्ट है, कोई भी एक किताब है, कोई भी एक पेज है, अगर आप उसके लैंग्वेज को जानते हो तो आप इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हो. स्ट्रक्चरलिज्म में यही बात कही गई है. एंड दैट इज़ वट इन स्ट्रक्चरलिज्म नोन एज हर्मेनोटिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. स्ट्रक्चरलिज्म में इसी को हर्मेनोटिक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कहा गया है. क्या क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? वेरियस इंटरप्रिटेशन दैट यू कैन गेट आउट. बहुत सारे इंटरप्रिटेशन जो कि आप निकाल सकते हैं बाय एनालाइजिंग द लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट
लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट को एनालाइज करके। बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, अगर आप उसकी लैंग्वेज जानते हैं, देन यू कैन नो अ लॉट अबाउट अ टेक्स्ट। इट मीन्स if you know the language of a text, then you can analyze it and devise various interpretation. You can derive different meaning of a text in structuralism. Structuralism में मतलब ये होता है किसी भी टेक्स्ट से different interpretation, different meaning आप निकाल सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें. It is independent for author, from author. यह है author से independent होता है, author की कोई भूमिका जो है वो इसमें नहीं होती है. Author has no right over the text now. Author just wrote the work and his or her work has finished. उसका काम ख़त्म हो चुका होता है. Now the reader read the text. Reader जो है वो टेक्स्ट को रीड करता है and reader or you can interpret it whatever ways you want. It is your duty, it is the reader's duty to interpret the or devise the meaning of the text. The prominent figure of structuralism was Ferdinand de Saussure. He was the father of modern linguistics and he was a great scholar of Sanskrit as he had did PhD in Sanskrit. That's why he know very much about the language. Some principle has given by the Ferdinand de Saussure. First important principle is episteme. Episteme. What is the meaning of episteme? Episteme talks about two important things. First is unit of knowledge construct from language. It means knowledge constructed by language. You cannot construct knowledge without a language. If you don't know knowledge, if you don't have a knowledge, then you cannot, if you don't know knowledge, then you cannot construct, if you don't know language, you cannot construct knowledge. अगर आपके पास language नहीं है, अगर आप language नहीं जानते तो आप knowledge construct नहीं कर सकते. Means in order to gain knowledge, you need to know language. Knowledge को gain करने के लिए language को जानना ज़रूरी है. Without language, you cannot get knowledge. The first important thing in episteme. Second है इसका important, दूसरा important point है linguistic determinism. मतलब is the key means language determine thoughts. Language से ही thoughts जो है वो determined होते हैं. Without language you can't think about anything. किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं सोच सकते without language. So episteme discuss the two important things. First, knowledge is constructed by language, and second, language constructed the thoughts, or without language you cannot think. Second important principle given by the Ferdinand de Saussure was language follows a structure. Every language has a structure. For example, if there is a sentence, my name is dash, my name is Pooja, then there is a proper structure in this line. Like first is subject, then helping verb or object. एक proper structure होता है language में, तो language follow a structure. The principle and theories of Saussure is written in the book Course in General Linguistics. All the thoughts of the Saussure was written in this book, but this book was not written by the Saussure. This book was not written by Saussure. He didn't wrote a single book in his lifetime. अपनी lifetime में he didn't write a single book. But he was a lecturer in a college and his students wrote the notes, and these notes were later published in a book form. He was a lecturer and he gave lectures to his students, and his students wrote the notes, and later these notes published in the form of a book. Saussure gave four major theories. He gave four famous theories. First theory is sign, signifier and signified. Second, language and parole. Third, paradigmatic, symptomatic. Fourth, diachrony and synchrony. First theory is sign, signifier and signified. What is sign? Sign is any symbol. कोई भी symbol, चाहे आप ये कर सकते हैं, मैकडोनल्ड का सिंबल हो सकता है, एप्पल का सिंबल है, कोई भी एक सिंबल. अब साइन जो होता है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. व्हाट इज सिग्निफायर? सिग्निफायर इज अ फिजिकल प्रेजेंस और अ वर्ड. अब इस सिंबल का एक वर्ड होता है एप्पल, जिसे हम सिग्निफायर बोलते हैं, एंड सिग्निफाइड इज़ द मीनिंग मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड. इसका मेंटल कॉन्सेप्ट, इस एप्पल का जो हमारे किसी भी पर्सन के दिमाग में मेंटल कॉन्सेप्ट बनता है उसे सिग्निफाइड बोलते हैं. तो साइन जो है वो कोई सिंबल होता है, सिग्निफायर कोई भी उस सिंबल का वर्ड, और सिग्निफाइड होता है कि कोई भी पर्सन के दिमाग में क्या मेंटल कॉन्सेप्ट बनता है. But according to Saussure, signifier is more important to signified. Signifier is more important to signified according to the Saussure, as signified changed, but signifier does not. For example,
अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ द सिंबल ऑफ एन एप्पल, सिग्निफायर इज़ एप्पल बट सिग्निफाइड इज़ डिफरेंट बिकॉज आफ्टर सीइंग दिस इमेज, इसको देखने के बाद अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएंगी। दे थिंक अबाउट द एप्पल केक, एप्पल पाई और एप्पल जूस, तो अलग अलग इमेज उनके दिमाग में बनेगी। तो ये अलग अलग होगा, बट सिग्निफाइड एप्पल इज़ फिक्स्ड। सो अकॉर्डिंग टू शोशर, सिग्निफायर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिग्निफाइड, और स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग भी सिग्निफायर इंपॉर्टेंट है सिग्निफाइड के, बिकॉज वर्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सिग्निफायर डज नॉट चेंज बाय सिग्निफाइड चेंज। सिग्निफायर जो वर्ड है, जो फिजिकल प्रेजेंस है, वो चेंज नहीं होती, बट द मीनिंग जो है, मेंटल कॉन्सेप्ट जो है, वो इस सिग्निफायर का वो चेंज होता रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसी से रिलेटेड है, आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि कोई भी एक वर्ड जो होता है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी कि अगर हम किसी भी एक वर्ड की बात करें तो उसका जो मीनिंग होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू शोशर, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चमचम? अगर हम एक वर्ड ले चमचा की अगर हम बात करें, व्हाट इज इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे इसका मतलब होता है चापलूस, और अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो इसका मीनिंग जो है वो स्पून होता है। तो एक ही वर्ड के क्या है, अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो सिग्निफायर भी जो है वो क्या होता है, सिग्निफायर जो होता है, यानी कि जो सिग्निफायर होता है, जो किसी भी साइन का जो मीनिंग होता है, जो वर्ड होता है, वो भी कल्चरली चेंज होता रहता है। ठीक है, लाइक द आइडिया ऑफ गॉड, अगर हम गॉड की बात करें तो किसी के लिए गॉड का मतलब कुछ और है, किसी के लिए गॉड का मतलब कुछ और है। तो सिग्निफायर इज चेंज अकॉर्डिंग टू कल्चरल। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। बाइनरी मतलब अपोजिट। इसका मतलब ये है कि इफ़ वी वांट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, देन वी हैव टू यूज द अपोजिट ऑफ दैट वर्ड। Meaning means for knowing the meaning of a word, we look the opposite of that word. For example, if we want to describe the word of darkness, what is the meaning of darkness? The meaning of darkness is the absence of light. So, defining of darkness, we use the opposite word light. Similarly, if we define what is good, what is the meaning of good? Which is not bad. Which is not bad. तो गुड क्या होता है, जो बैड नहीं होता है। तो किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए उसके अपोजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट गिवन बाय द सेकेंड प्रिंसिपल और सेकेंड थ्योरी गिवन बाय द शोशर इज लैंग्वेज एंड पैरोल। लैंग्वेज एंड पैरोल क्या है? सिमिलरली मैं बता देती हूँ। लैंग्वेज जो होते हैं वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रामेटिकल रूल को लैंग्वेज बोलते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो होती है उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लैंग्वेज, और पैरोल होता है उसका इस्तेमाल करना, उसे बोलते हैं पैरोल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ चेस, द रूल ऑफ द चेस इज पैरोल एंड द यूसेज ऑफ द रूल इज कॉल्ड द रूल ऑफ द chess is known as language, and the usage of that rules is known as parole. Both are French words. French words in English, language means language, it means language, and parole means speech or speaking. Language comprises the rules of grammar of a language, the phonetics, spelling. It consists the rules of a language, and it is making use of these rules to produce utterance. It is uses the rules of the language for speaking or for utterance. Language is the system and parole is the use of system. Similarly, it is the system and it is the use of that system. The complete language cannot exist without language and parole. Language means language plus parole, system plus the usage of the system or the structure. Language is abstract, it is difficult to observe and almost impossible to capture. It is abstract होता है, it cannot change. Language is the collective act of the whole race. It is internal and innate. It cannot be changed. It cannot be changed. और पूरे की पूरे रेस का एक ही कलेक्टिव एक्ट होता है ये. But parole is concrete होता है ये. It can be seen and even recorded as speech by individual. इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि व्यक्ति क्या करता है पैरोल में लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करता है अपनी स्पीकिंग में. तो वी कैन रिकॉर्ड द पैरोल. पैरोल इज़ एन इंडिविजुअल एक्ट है. अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो लैंग्वेज की जो लैंग्वेज होता है उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है. तो इट इज़ इंडिविजुअल.
Second important topic, third important principle or theory given by the Saussure is syntagmatic और paradigmatic. अब ये क्या होता है? Ferdinand de Saussure described the concept keeping in view the fact that language is very complex organization of different linguistic items. फर्डिनांड ने क्या करा था, इस कॉन्सेप्ट को दिया था ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वह बहुत सारे लिंग्विस्टिक आइटम्स से बनती है. लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस, वर्ड्स, लेटर्स एक्सेट्रा विच आर बाउंड टुगेदर. वे सारे के सारे दूसरे से बाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स में. मतलब कि रूल्स होता है हर एक सेंटेंसेस का, हर एक लैंग्वेज का अपना रूल्स होता है और उसी रूल्स से ही जो है वो लैंग्वेज बनती है. द डिफरेंस बिटवीन सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक क्या होता है? इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड लीनियर रिलेशनशिप. वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस आइडिया, दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. सिंटैग्मेटिक जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इट मीन्स ऐसी होती है ये. और पैराडिग्मेटिक वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, इस तरीके का रिलेशनशिप होता है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस हैज़ रिलेशनशिप विद सेकेंड word and it goes on up to last word. First word has relationship to second, second to third, third to fourth, fourth to fifth and so on. तो हर एक वर्ड का अपना रिलेशनशिप जो होता है वो अपने नेक्स्ट वर्ड से होता है. रिलेशनशिप बेस्ड ऑन सेनेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीक्वेंस. अब ये जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है कि लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेनेटिक रिक्वायरमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है. बट इन पैराडिग्मेटिक vertical relationship that exist among the words belonging to the same grammatical class that may be substituted for one another. It means पैराडिग्मेटिक क्या होता है कि ये एक सेंटेंस है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये सिंटैग्मेटिक होते हैं क्योंकि ये अपने पूरी इसकी एक सीक्वेंस होती है. इट इज़ इन प्रॉपर सीक्वेंस. सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है, एंड एडवर्ब. बट इफ़ वी लुक दिस वर्ड्स लाइक दिस, अली, दे, बर्ड्स, आई, वट इज़ दिस, वट आर, ये सब क्या है? दे आर नाउन्स. इज, आर, वाज, दे आर ऑल अ ग्रामेटिकल क्लास. दे आर ऑल कंबाइंड इन अ कंसिस्ट इन अ ग्रामेटिकल क्लास. ये सारे के सारे ग्रामेटिकल क्लास के ही पार्ट्स होते हैं. सिमिलरली प्लेइंग, ईटिंग, सिंगिंग, बीटिंग, दे आर the part of the grammatical class verb. Similarly football, mango, songs, hymn, they are the part of the grammatical class object. तो इस तरीके से जो है वो अगर हम किसी भी सेंटेंस को डिवाइडेड करते हैं तो हर एक ये जो वर्ड्स होते हैं ये ग्रामेटिकल क्लास में शामिल होते हैं. तो सिंटैग्मेटिक यही होता है कि ये लैंग्वेज की सीक्वेंस होती हैं और पैराडिग्मेटिक होती हैं इस तरीके के, यानी कि हम टुडे की जगह स्लोली की जगह स्वीटली, मर्सली या फिर फुटबॉल, मैंगोज, इस हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये है सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक. लास्ट कॉन्सेप्ट इज़ डाइक्रोनी एंड साइक्रोनी. साइक्रोनी क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करना एक निश्चित समय पर, प्रेजेंट में हम किसी भी लैंग्वेज की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे साइक्रोनी बोलते हैं. और डाइक्रोनी होता है कि जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं हिस्ट्री से लेके पास्ट से लेके प्रेजेंट से, उसे हम साइक्रोनी बोलते हैं, डाइक्रोनी बोलते हैं. साइक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम इन अ पार्टिकुलर स्टेट में द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. एक निश्चित समय पर लैंग्वेज की स्टडी करना. इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद स्टडी हाउ पीपल यूज द लैंग्वेज एट अ वन पीरियड ऑफ टाइम. एक निश्चित समय पे लोग कैसे इस्तेमाल करते थे. इफ़ वी डिस्कस अबाउट द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एज, देन एंड अकॉर्डिंग टू द साइक्रोनिक स्टडी वी शुड learn, we should discuss or we should analyze the language used in the Elizabethan age. हमें केवल उस समय की ही लैंग्वेज की स्टडी करनी होगी कि उस समय कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता था अकॉर्डिंग टू साइक्रोनिक. बट इन डाइक्रोनिक इज द स्टडी ऑफ द words or the language evolution, how language evolved from the period of time. For example, French and Latin evolved from French, and Italian evolved from Latin, and Hindi evolved from Sanskrit. So it is the study of the diachronic. Diachronic is the study of linguistic system of its evolution in time. It is the study of language evolution, deal with the development of language over time. For example, French and Italian evolved from Latin and Hindi from Sanskrit. So it is all about the structuralism. The next video I will make the video of post-structuralism. We will discuss the concept of post-structuralism in my next video. Thank you.